Today we are going to have a brief insights on what GST is all about and what is the impact it will create on the trading sector. Before starting this particular video, let me make one thing very clear to all of you. This video is basically for traders only and not for service oriented people, and it is also not for the manufacturers. So basically, if you are a trader, you may be very much interested in knowing a few different aspects on what GST is all about and what is the impact that it will create on the trading market. Friends, we all know that currently the traders are differentiated in three different categories. Either the traders are unregistered, they are not registered under VAT. Either they are registered under VAT and they are paying tax under the normal provisions of VAT. And the third category of people are the traders who are registered and they are paying tax under the composition scheme of VAT. Now these are the three people who are currently in the existing tax laws, that is state VAT laws, there in the economy. Now for the people who are currently unregistered, there is no direct compulsion to get themselves registered under GST. But if a person is registered currently under the normal scheme, being a trader, or if he is registered under the composition scheme, being a trader, he has to compulsorily get himself registered under the GST. That is by way of migration. Now, migration window was closed on 15th of this June. It is again expected to reopen on 25th. And so all those people who have not migrated from the current VAT laws to the GST are well advised to do the same before the very limited period that is going to be given to them, that is till 30th of June maybe. From 1st of July it is anticipated that GST will come into play. So there are a lot of debates and discussions going on whether it is good or bad. I will not be discussing on the positive or negative aspects of GST today, but today majorly what we will focus on is the impact on the trading sector in the regular course of business. Friends, currently अगर आप unregistered हो और आप GST में भी unregistered हो तो कोई इश्यू नहीं है आपको. अब कोई टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है. आप जो माल परचेस कर रहे हो वो माल आपने खरीदा, वो माल आप बेच दो, कोई इश्यूज़ नहीं होगा आपको. पर आपको कब कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा? अगर आप अभी अनरजिस्टर्ड हो और बाद में क्या ऐसी सिचुएशंस होंगी कि आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन नंबर लेने ही पड़ेंगे, तो वो दिया है सर सेक्शन 24 ऑफ CGST एक्ट में. वहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप कुछ भी तरीके से आपका टर्नओवर 20 लाख से ज़्यादा हो जाए, या फिर आप एक्सपोर्ट्स करना स्टार्ट करें, या फिर आपने अपने स्टेट के बाहर माल बेचना स्टार्ट किया, या फिर आप नॉन लेविएबल जो चीज़ें हैं वैट में, GST में, उसका धंधा कर रहे हो, ऐसी चीज़ें अगर आप करते हो तो सेक्शन 24 आपको बोलता है कि कंपलसरी रजिस्ट्रेशन आपको लेना पड़ेगा. पर अगर ऐसी चीज़ें आप नहीं करते हो और आपका टर्नओवर 20 लाख से भी ज़्यादा नहीं होता है तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर लेने की ज़रूरत नहीं है GST में भी. लेकिन रजिस्ट्रेशन नंबर आप नहीं लोगे तो आपसे जो माल परचेस करता है ना, शायद उसको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आपकी जो एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट है उसमें क्रेडिट एलिमेंट होगा, जिसकी क्रेडिट पास ऑन नहीं हो रही है, जिसकी वजह से क्या होगा कि आप जो माल उसको बेचोगे ना, उसके ऊपर उसको टैक्स भरना पड़ेगा, और जो माल आप उसको बेच रहे हो उसके ऊपर क्रेडिट पीछे से आ रही है, उसी क्रेडिट उस भाई को मिलेगी नहीं. तो जनरली वो प्रेफर ज़्यादा करेगा कि वो आपसे माल परचेस ना करे पर किसी रजिस्टर्ड डीलर से परचेस करे, ताकि GST जो इतने सालों से इतने टाइम से जो माल हमारा आ रहा है उसके ऊपर जितना GST लगा हुआ है ना, उसकी क्रेडिट आगे बढ़े. इसलिए एक बहुत ही जेन्युइन और बहुत ही अच्छा स्टेप है ये कि जो भी व्यक्ति रजिस्ट्रेशन में है और जो भी व्यक्ति जेन्युइन बिजनेस कर रहे हैं उनको थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि उनकी अल्टीमेट कॉस्ट जो वो कॉस्ट पे माल बेच रहे हैं उनके कस्टमर को इजी पड़ेगी अगर B2B मॉडल है तो.
मतलब अगर आप अनरजिस्टर्ड हो तो आपको डिपार्टमेंट से डरने की कोई जरूरत नहीं है, अगर आपके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं आ रहा है कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के। पर प्रॉब्लम आपको कहाँ पे फेस करनी पड़ेगी सर? आपको प्रॉब्लम वहाँ पे फेस करनी पड़ेगी कि आपका जो कॉम्पिटिटर है जो रजिस्टर्ड है, शायद वो उतना ही प्रॉफिट कमाने के बाद जितना आप कमाते हो प्रॉफिट उतना ही कमाएगा, लेकिन उसका माल सस्ते में जाएगा आगे। अभी भी ऐसा था, लेकिन अभी जो रेट्स थी वो उतनी ज्यादा नहीं थी। अभी क्या एक्साइज का भी अमाउंट जीएसटी में आ गया, एक्साइज का रेट भी जीएसटी में आ गया। इसकी वजह से ये जो मटेरियल चीजें हैं ना वो बहुत ही ज्यादा तौर पे दिखनी स्टार्ट हो जाएंगी ट्रेडर्स को। इसलिए एकदम ध्यान से ये चीज करनी पड़ेगी आपको, और आपका बिजनेस भी कैसा है वो भी देखना पड़ेगा। ये बात हुई अनरजिस्टर्ड डीलर्स की। सेकेंड हम लोग बात कर रहे हैं रजिस्टर्ड डीलर्स की, जो कि नॉर्मल स्कीम में है। सर अगर आप रजिस्टर्ड डीलर नॉर्मल स्कीम में है, मतलब आप क्रेडिट लेते हो और आप क्रेडिट आगे पास ऑन करते हो, तो सबसे पहली चीज कि अभी तक अगर आपके पास वेट में कोई क्रेडिट पड़ी है तो आप वो जीएसटी में आगे लेके जा पाएंगे डेफिनेटली। पर आपको उसके लिए एक ट्रांस फंड करके फॉर्म भरना पड़ेगा 1 जुलाई के बाद। लेकिन सर उसमें भी आगे आप अपना बिजनेस जो मॉडल है वो रिवाइव करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि अब तक हम लोग क्या करते थे, परचेस का बिल आता था उसकी क्रेडिट ले लेते थे, फिर वो भरता था कि नहीं भरता था वो सब कुछ वेट के जो वेबसाइट पे हमें मिलता तो था, लेकिन उसके वजह से ज़्यादा डायरेक्टली हमारी क्रेडिट रिवर्स नहीं होती थी। असेसमेंट आए तो उसके बारे में ज़्यादा बात होती थी। लेकिन अभी क्या होगा, आपने जिससे माल परचेस किया है उसकी क्रेडिट आपको तभी मिलेगी जब उसने 10 तारीख तक अपने सेल इनवॉइस के रिटर्न में बताया हो कि आपको उसने माल भेजा था। मतलब वो अगर उसके ऊपर टैक्स भरेगा तो ही आपको क्रेडिट मिलेगी। 15 तारीख तक आपको वो देखना पड़ेगा। मतलब 10 तारीख तक वो डालेगा कि मैंने इसको माल बेचा है, 15 तारीख तक आप अफर्म करोगे या फिर रिजेक्ट करोगे या फिर ऐड करोगे या फिर डिलीट करोगे। अगर उसमें उस टाइम के बीच में सब कुछ मैच हो गया तो कोई इश्यू नहीं है। 17 तारीख तक आपको क्रेडिट मिल जाएगी और उसको उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा 20 तारीख तक। चलन उसका जनरेट हो जाएगा 20 तारीख को और उसको पे कर देना पड़ेगा वो वेट की अमाउंट। उसमें कोई इश्यू नहीं आएगा। लेकिन इसकी वजह से क्या होगा फ्रेंड्स, आपकी अकाउंटिंग आपको एकदम फास्ट रखनी पड़ेगी कि भाई एकदम काम जो आपका है वो टिप टॉप होना चाहिए, वरना क्या होगा आपकी क्रेडिट डीले हो जाएगी। और शायद ये भी हो जाएगा कि आप किसी को माल बेच रहे हो तो आपको 10 तारीख तक बताना पड़ेगा कि मैंने इसको माल बेचा है, वो रजिस्टर्ड व्यक्ति है, और वो क्रेडिट तब लेगा जब आप अपने रिटर्न में दिखाओगे कि मैंने इसको माल बेचा है। मतलब ये जो जितनी चीजें आप डिटेल में समझते जाओगे ना उतना आपको पता चलेगा कि धंधा करना थोड़ा बहुत तो सर टफ होने ही वाला है, लेकिन 1 आध साल के टाइम फ्रेम में सब लोग एडजस्ट और यूज टू हो जाएंगे इस नई मैकेनिज्म से। अच्छा फ्रेंड्स, अभी अगर आप करंटली कंपोजिशन स्कीम में हो तो शायद आप प्रिफर करो कि आप जीएसटी में भी कंपोजिशन स्कीम में जाएं, पर उसमें भी प्रॉब्लम्स थोड़े बहुत रहने वाले हैं। क्या प्रॉब्लम्स रहेंगे? मान लीजिए आप कंपोजिशन स्कीम में जाते हो तो उसमें एडवांटेजेस पहले मैं बता दूं कि आपको कुछ रजिस्टर मेंटेन नहीं करना पड़ेगा, आपको कोई रिटर्न्स या कोई हेक्टिक 10 तारीख तक फाइल करना ऐसा कुछ नहीं पड़ेगा, पर आपको क्वार्टरली रिटर्न फाइल करने पड़ेंगे 3-3 महीने में, जो आप अभी कर रहे हो। पर फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम मैं आपको बताऊं, मान लीजिए मैं कंपोजिशन स्कीम में एक डीलर हूँ, मैं 20 लाख का माल बेचता हूँ पूरे साल में या फिर 30 लाख का बेचता हूँ, तो मुझे 30,000 रुपये टैक्स भरने पड़ेंगे 1% के हिसाब से, नॉर्मल अगर मैं हूँ व्यक्ति तो। पर दूसरी एक रिस्ट्रिक्शन आई है सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 में सीजीएसटी एक्ट में। क्या बता रहा है वो बता रहा है कि अगर आप रजिस्टर्ड डीलर हो और आप अनरजिस्टर्ड डीलर से माल परचेस करते हो, रजिस्टर्ड आप कोई भी हो पर आप अनरजिस्टर्ड डीलर से माल परचेस करते हो, तो वो जो टैक्स वो नहीं भरता है वो भी आपको भरना है। अच्छा सर, वो टैक्स वो नहीं भर रहा है पर आप भर रहे हो तो आपको क्रेडिट मिलनी चाहिए। यस, तो नॉर्मल जो स्कीम में व्यक्ति होंगे ना कि रेगुलर भी 18% क्रेडिट क्लेम कर रहे हैं, फिर क्रेडिट पे माल बेच रहे हैं, वो उसके ऊपर टैक्स भर रहे हैं, उनको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म 9(4) का जो चीज है उसको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म बोलते हैं, उसकी क्रेडिट उस बाई को मिल जाएगी। लेकिन कॉम्पोजिशन स्कीम में जो डीलर्स हैं उनको कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगी। वो इनपुट टैक्स क्रेडिट के सेक्शन में लिखा हुआ है, मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट कंपोजिशन स्कीम के डीलर को नहीं मिलेगी। इसका लिटरल इंटरप्रिटेशन एक तरह से ऐसे निकलता है कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के
दरमियान भी आप जो टैक्स भरते हो उसकी भी क्रेडिट आपको नहीं मिलेगी। मतलब अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम वाले व्यक्ति हो, आपने अनरजिस्टर्ड व्यक्ति से माल परचेस किया, तो वो तो वैट लगाएगा नहीं, जीएसटी लगाएगा नहीं, जीएसटी लगाएगा नहीं, तो आपको उसके भी आप पे गवर्नमेंट को टैक्स भरना पड़ेगा, जिसको बोलेंगे जीएसटी, और आपको अपने टर्नओवर का भी 1% भरना पड़ेगा। अच्छा, उसका मान लीजिए 1,00,000 रुपए का माल आपके पास आया जिसके ऊपर उसने जीएसटी नहीं लगाया था, पर आपको 1,00,000 के ऊपर मान लीजिए उसके गुड्स के ऊपर 18% रेट लगता है, तो 18,000 रुपए आपको अपने पॉकेट से निकाल के डिपार्टमेंट को पे करने पड़ेंगे। बहुत ही हेक्टिक होने वाला है फ्रेंड्स ये, अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम में हो तो। अगर B2B मॉडल में आप जा रहे हो तो थिंग्स कैन बी वेरी टफ। अच्छा, कॉम्पोजिशन स्कीम किन किन लोगों के लिए अच्छा है? मान लो मैं बिजनेस टू बिजनेस परचेस कर रहा हूँ, तो सामने रजिस्टर्ड डीलर से मैं परचेस कर रहा हूँ अगर माल, तो उसने तो जीएसटी लगाया ही होगा, तो मुझे रिवर्स चार्ज में अब भरने की जरूरत नहीं है। इस केसेस में अगर मेरे ज्यादा सप्लायर्स जीएसटी रजिस्टर्ड व्यक्ति हैं, तो मुझे कॉम्पोजिशन स्कीम में जाने की बारे में सोचना पड़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन मैं अनरजिस्टर्ड डीलर से माल परचेस कर रहा हूँ और मैं कॉम्पोजिशन स्कीम में जा रहा हूँ, तो बाय डिफॉल्ट मैं बहुत ही बड़ी मिस्टेक करने वाला हूँ। तो ध्यान से समझ के, सोच समझ के कामकाज करना पड़ेगा अभी जीएसटी के बाद। अच्छा, कोई व्यक्ति, अभी मुझे बहुत सारे क्लाइंट्स का कॉल आ रहा था कि सर अभी मैं नॉर्मल स्कीम में हूँ और अभी मुझे कॉम्पोजिशन में जाना है, तो जा सकता हूँ? यस, जा सकते हो, पर जितना भी स्टॉक है जिसके ऊपर आपने क्रेडिट अभी तक ले चुके हो आप लोग, वो क्रेडिट आपको रिवर्स करनी पड़ेगी, और रिवर्स करने के लिए डायरेक्टली यू विल हैव टू पे दैट अमाउंट टू द डिपार्टमेंट। तो वो अगर आपके पास इतना पैसा है कि आप अभी रिवर्स करके जितनी क्रेडिट है आपका पैसा आप भर दो, देन इट इज ओके। अच्छा, आप अभी कॉम्पोजिशन में हो और आपको रेगुलर पे जाना है, जा सकते हो, जितना भी स्टॉक आपके पास पड़ा है उसकी क्रेडिट आप ले पाओगे। एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन, सर अब तक क्या होता था? 12.5% जनरली एक्साइज ड्यूटी होती थी और 4% वैट होता था। मेरे पास मान लीजिए 20 लाख का माल पड़ा है, क्रेडिट एक्साइज ड्यूटी की मेरे पास है नहीं, क्योंकि मेरे पास जो बिल है उसमें एक्साइज भले ही लगा हुआ है, पर एक्साइज की अमाउंट रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, क्योंकि मैं परचेज मैन्युफैक्चरर से नहीं कर रहा हूँ, होलसेलर से कर रहा हूँ। तो सीजीएसटी जो मैं भरने वाला हूँ उसका 40% या 60%, इफ इट डिपेंड्स। अगर 18% से ज़्यादा आपका जीएसटी का रेट है टोटल, तो आपको 60% रिफंड मिलेगा, और आपका अगर 18% से कम है तो 40% यू विल बी एबल टू क्लेम एज रिफंड ऑफ आफ्टर रिफंड नहीं, क्रेडिट, आफ्टर यू पर्टिकुलरली फाइल योर रिटर्न एंड यू पे द अमाउंट फर्स्ट। मतलब मान लीजिए मेरे पास 3 लाख का स्टॉक है जिसमें मुझे पता नहीं एक्साइज है कि नहीं है तो सही, पर कितना एक्साइज है आई डोंट नो। तो क्या करूंगा मैं? वो 3 लाख का माल जब मैं जीएसटी रेजिम में बेचूंगा, तो वो 3 लाख के माल के ऊपर मुझे मान लीजिए 9% सीजीएसटी लगता है और 9% एसजीएसटी लगता है। तो सीजीएसटी के सामने मेरे पास अगर वैट की क्रेडिट, एसजीएसटी के सामने अगर मेरे पास वैट की क्रेडिट पड़ी है, तो आई कैन यूज दैट एंटायर क्रेडिट ऑफ वैट। बट अगर सीजीएसटी अब मैं भर रहा हूँ, तो कोई ट्रेडर क्या बोलेगा, सर मैं सीजीएसटी भर रहा हूँ, वो तो एक्साइज वाले भरते थे बंदे, पर अभी मैं भर रहा हूँ इसके ऊपर एक्साइज की क्रेडिट मुझे मिली ही नहीं। तो डिपार्टमेंट ने क्या बोला है, आपका अगर 18% से ज़्यादा रेट है, देन यू विल बी एबल टू गेट 60% ड्रॉबैक आफ्टर यू पे दैट अमाउंट, और उससे कम है तो 40% ड्रॉबैक, दैट इज गिवन इन द रूल्स। अच्छा, वो उसके ऊपर मैं जितना नॉर्मल 9% के ऊपर मैं 60% क्लेम कर लूँ, मेरे 5.4% आई विल गेट द क्रेडिट। वो भी कब? जब मैं 9% भर दूँ तब। तो एक ये भी चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट मटेरियल है ध्यान में रखने के लिए कि आप जीएसटी रेजिम में किस तरह से आगे बढ़ने वाले हो फ्रेंड्स। उसके बाद नए लोग जो रजिस्टर करने वाले हैं, जो अभी रजिस्टर्ड है उनको निकलना है, तो सेक्शन 29 बोलता है कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के बारे में। जैसे ही आप जीएसटी रेजिम में आ जाते हो और आपको लगता है कि अभी इसमें अपने को रजिस्टर होने की ज़रूरत नहीं है, मान लीजिए आपका वैट में टर्नओवर था 12 लाख, तो आपको रजिस्टर होना पड़ता था क्योंकि 5 लाख की लिमिट थी गुजरात में वैट की, लेकिन जीएसटी में वो लिमिट 20 लाख हो गई। तो आपको लग रहा है कि आपको रजिस्टर होने की ज़रूरत नहीं है, तो यू कैन अप्लाई फॉर कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। और आप जैसे कैंसलेशन के लिए अप्लाई करते हो तो वो आपको रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देंगे, लेकिन उसमें भी आपके पास जितना माल पड़ा है, जिसकी क्रेडिट आपने ले चुकी है, तो वो क्रेडिट आपको रिवर्स करनी पड़ेगी। और कॉम्पोजिशन स्कीम में अगर आप हैं तो उसके ऊपर आपको कॉम्पोजिशन के रेट पे
GST भरना पड़ेगा। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो रजिस्ट्रेशन अपना। तो इतनी थोड़ी बहुत चीज़ें मैंने आपको बताई ट्रेडर के बारे में जो ध्यान में रखनी है। और भी अगर आपको कोई डाउट्स हो तो आप कभी मुझे कॉल कर सकते हैं, और या फिर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फेसबुक पे आप मुझे ढूंढ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव अ नाइस डे।